अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। और अगर आपने क्यूरेटर्स को अभी ज्वाइन किया है तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन छोटा सा काम ये भी कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इस मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तहत चलने वाले प्लेटफॉर्म की हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बहुत छोटा सा काम करना है, वो करना है बेल आइकन को दबाना है। और जनाब, आज वी आर स्टार्टिंग अ सीरीज ऑफ 2 वीडियोस। तो आपने ये वाली वीडियो भी लाजमी देखनी है, एंड तक देखनी है, और इससे अगली वीडियो भी आपको एंड तक देखनी है, ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में असल समझ हो। और आफ्टर क्वाइट सम टाइम नाउ वी आर हैविंग समबडी हु इज माशाल्लाह did his bachelor's in economics, ended up getting master's in mass communication, have written more than 3,000 different articles regarding different issues. He has been associated with quite a few different media houses, IT houses as well. He started his internship with Geo, and he's been someone who is one of the best friend I ever had, to be honest with you. Whenever we used to have discussions in the university, I always enjoyed a lot, and today you also will enjoy a lot listening. Let's take this honor to welcome Tazmeen Javed with me. Assalamu alaikum Tazmeen, कैसे हो? Welcome, Stamaka. How are you, my friend? अल्लाह का I'm बड़ा fine. करम. It's been a long time now we are talking. How are you? How's Yeah, everything? yeah. It's been, I guess, 4 to 5 years. So, everything is fine. We are just gearing up for the interview because the day you texted me, I thought it's an opportunity to have interpersonal communication and to discuss different set of ideas and different, obviously about journalism in particular. But the main objective was to get in touch with you because, mashallah, you're doing a very good job and you have created a very informative channel which deals with different issues prevalent in the society, and that's the most important thing because we can't make ourselves stick to a one point. We have to see in a broader dimensions. So credit goes to you. Thank you. And just to add to this, what you've said, obviously it was not ever, never have been possible without such informative and interesting guests, such information which people have come over this platform and told audience as well. तो आई आप तमाम लोगों को जनाब इसका क्रेडिट जाता है, जितने भी गेस्ट हमारे साथ आए, टीचर्स, प्रोफेसर्स, डीन्स, डायरेक्टर्स, and now we have got another great person with us. अच्छा तजवीन, जर्नलिज्म की जैसे तुमने अपनी इंट्रो में भी बात की कि वी बी टॉकिंग अबाउट जर्नलिज्म. जर्नलिज्म के बारे में उमूमन लोगों के बड़े अजीब से कंसेप्शंस होते हैं. जैसे मुझे याद है, somebody I just heard saying कि जर्नलिज्म का मतलब होता है लोगों को फजूल बातें बताना, बस वो मीडिया पे आते हैं और लोगों को बताते रहते हैं. बट इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव नॉलेज व्हाट जर्नलिज्म इज. तो जर्नलिज्म बेसिकली है क्या? व्हाई इट इज सो लाइक मिसअंडरस्टूड फर्स्ट, एंड देन व्हाट इज बेसिकली जर्नलिज्म? अब खैर बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन उसमें बहुत कलीदी सवाल भी है बहुत हवालों से. उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, if you speak good, it's an art. If you write well, it's an art. But what to speak and what to write is journalism. In short words, in the summary, what I have concluded in my 5 to 6 years, that you have to present the facts. You can't be somewhat, you can't rely on surmises, on stories or rumors. Obviously, it's a talent that if you can speak good, if you can write, if you have a good personality, that's the added impetus that would add to your personality. But in in today's world where there's so much buzz on the social media and where the people rely over spicy content, there are few people who believe in the journalism ethics. And the journalism ethics is that you have to present your story, your content in a way that creates an opinion, that disseminates the opinion, and from that particular opinion, you see the international, you see the current scenario or the international scenario or anything which relates to journalism, which can be any particular topic. आप उस पर अपनी राय जनी करते हैं हकायक की बुनियाद पे. जब आप एक चीज हकायक की बुनियाद पे करते हैं, फिर आप एक तरह से लोगों को एक वेल इन्फॉर्म्ड डिस्कशन उनको प्रोवाइड करते हैं. और जब वो उस चीज को सुनते हैं और उस चीज को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उनके पास एक फैक्चुअल नॉलेज आ रही है. तो जर्नलिज्म इज बेसिकली फैक्ट्स. उसके अलावा हर चीज जो है वो कमर्शियलिज्म के एस्पेक्ट से आप देख सकते हैं. मिसाल के तौर पे आपने लड़ाई झगड़े का
Yes, that's a आपने good लड़ाई point. Let me just add to this one more ताकि फिर एक सवाल का और तो आप इस पर आंसर दे सकते हो. सोशल मीडिया पे बात करना भी लोग समझते हैं जर्नलिज्म है. सोशल मीडिया पे बात करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग एन एडिटोरियल ओवरसाइट, जैसे अभी हम भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही बात कर रहे हैं, लेकिन क्या समझते हो सोशल मीडिया पर लोगों का जर्नलिज्म के बारे में जो व्यू है, हाउ वी कैन चेंज इट? क्योंकि जर्नलिज्म इज नॉट लाइक गिविंग ट्रेंड्स ऑन ट्विटर, गिविंग अनफॉर्चुनेटली मुझे एक लफ्ज कहना पड़ेगा जो हमारे यहाँ होता है अक्सर, कि फहाशी या बेहूदगी जो अक्सर अनफॉर्चुनेटली दिखाई जाती है, वो फेसबुक हो या यूट्यूब हो. दिस इज नॉट जर्नलिज्म, राइट? ट्रू ट्रू एंड उसमें लेकिन एक चीज है, बहुत अच्छी बात की आपने कि जो सोशल मीडिया पे जो चीज होती है दैट्स नॉट जर्नलिज्म एट ऑल. ऑब्वियसली इफ यू फॉलो इट, बिकॉज recently the trends which we saw on Twitter were very despicable, and we cannot even describe it here because it was something which was a mudslinging on someone's character assassination, and it's been happening for many years. What you call it, a trolling or this and that. सोशल मीडिया पे जो जो बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं सहाफत के हवाले से, कुछ इसमें अच्छे काम भी कर रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि हम बिल्कुल सबको एक ही उसमें कठेरे में खड़ा कर दें. उसमें बहुत सारे कमर्शियल एस्पेक्ट्स भी हैं, क्योंकि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इन पर्टिकुलर टीवी जिसको आप कहते हैं, वहां पे तनख्वाहों के मसले मसाइल हैं. एक कैमरामैन, एक रिपोर्टर, एक न्यूज प्रोड्यूसर, एक कंटेंट राइटर, ये एक वो कैटेगरी है कि जिसके पास जो अभी तक आई गेस 5 डिजिट्स के अंदर ही उसकी सैलरी रिवॉल्व कर रही है. वो अभी तक 1 लाख या उससे ऊपर का बेंचमार्क उसने क्रॉस नहीं किया है. तो वो ये सोचता है कि यार पैसा कमाने का दूसरा जरिया क्या हो सकता है. वो दूसरा जरिया ये सोचता है कि मैं इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए उसको मैं काम करने की कोशिश करता हूँ. ऑब्वियसली उसका क्योंकि एक जर्नलिस्टिक प्रोफाइल होता है तो उसमें उसकी एक फॉलोइंग बन जाती है. फिर वो इस तरह की बातें करता है, स्पाइसी चीजों को करता है, तो लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं. कभी कभार झूठ का भी उसको सहारा लेना पड़ता है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड टुडे अनफॉर्चुनेटली. सो उसको सहारा लेना पड़ता है. तो बेसिकली ये सारी चीजें रिलेट करती हैं आपके फाइनेंशियल इम्बैलेंसेस से, जो कि मीडिया में भी प्रिवेलेंट है, जो कि आपके मुल्क में भी प्रिवेलेंट है. अब जैसे टिकटॉक की मिसाल है, टिकटॉक में वो गांव देहात से जो लोग आते हैं, ऑब्वियसली आप किसी को लिमिट कंफाइन नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी का. अच्छी बात है कि अगर एक टेक्नोलॉजी का यूसेज आपके रूरल एरियाज में जा रहा है तो इससे एक अच्छा पैगाम, एक अच्छी बात आती है. लेकिन वो जो कंटेंट डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं मजबूर है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि उनके पास पैसे कमाने का कोई दूसरा तरीका है ही नहीं. रियासत ने वो उनके लिए मौके फराहम ही नहीं किए कि जहां से वो पैसा कमा सकें. तो इसी तरह जर्नलिज्म का भी यही हाल हो गया है. अखबारात आज के दौर में बहुत कम लोग पढ़ते हैं. अनफॉर्चुनेटली किसी के पास, कहीं ना कहीं फॉर्चुनेट बात भी है कि 1 घंटा नहीं है कि वो टीवी टॉक शो देखे बैठ के पूरा 1 घंटे का. वो ज्यादा से ज्यादा ये करता है कि वो 5 मिनट की क्लिप्स देख लेगा. तो अब सोशल मीडिया एक रियलिटी भी है, लेकिन और उसके साथ साथ उसको थोड़ा सा मॉनिटर करने की भी जरूरत है. मगर उसकी आड़ में हुकूमत करती है कभी कभार के अक्सर, कि जो जेन्युइन जर्नलिज्म कर रहे हैं उनके खिलाफ ज्यादा क्रैकडाउन होता है. क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज हुकूमत वक्त नहीं छाप चाहती कि वो चीज छपे, दैट्स जर्नलिज्म. या जो पावर्स दैट बी नहीं चाहते कि वो चीज छपे लेकिन वो छप जाती है या ब्रॉडकास्ट हो जाती है, वो है जर्नलिज्म. तो सोशल हाँ. मीडिया भी, क्योंकि एक सहाफी तो एक एलियन नहीं है, इसी मुआशरे से आता है, उसके अंदर भी ह्यूमन टेंडेंसीज हैं, पैसा कमाना चाहता है वो. तो वो अगर फेसबुक पर या यूट्यूब पे कुछ इस तरह की बात करता है जो बिलो द बेल्ट होती है या रूमर्स की बुनियादों पे होती है, और दैट कंसिस्ट ऑफ सरमाइजेस, दैट कंसिस्ट ऑफ हॉक्स, सो he or she might get herself or himself कमर्शियल into the कमर्शियलिज्म की streamline. कमर्शियलिज्म की बड़ी अच्छी बात की, तो इसी पर मेरे जहन में एक सवाल आया. डू यू रियली थिंक कि नाउडेज कमर्शियलिज्म हैव एक्चुअली taken over journalism? Because now, because of the commercial purposes, people are not tend to follow the ethics or the morality with this field. Do you really think so? Because this is what I saw, that's why I'm asking. That's a very valid question. Waqar, we have to see both sides of the coins. Obviously, a journalist cannot live without money. Journalism, actually, is the ideology based, ideology driven. If I see something happening wrong, I have to report it. And obviously, I have to place the blame on that particular administration, which is
accountable that why that wrong is happening. ठीक है, तो मुझे ये तो करना है। तो ये जो सहाफी है ना, ये इसी सोसाइटी का हिस्सा है, मगर और इसी सोसाइटी का हिस्सा है, और कमर्शियल एस्पेक्ट्स को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। मगर ये है कि अगर आपके लिए सहाफत पैशन है, अगर आप समझते हैं कि आप मुल्क के लिए, एक मुआशरे के लिए, या मुआशरे से ज्यादा पूरी दुनिया के लिए कोई तब्दीली अपनी राइटिंग से, अपनी आवाज से, अपनी ब्रॉडकास्ट से, अपनी प्रोडक्शन से, अपनी टेक्निकलिटी से, अपनी कैमरा टेक्निक से आप ला सकते हैं, तो सहाफत ज्वाइन करने का मकसद पैसा बनाना नहीं होना चाहिए। आपका काम उस आपका काम उस लेवल का हो, आपका काम उस लेवल का हो कि पैसा खुद आपकी तरफ चलते हुए। मगर ये एक आइडियल सोसाइटी की मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, ये एक लेकिन जो प्रैग्मेटिक बात है, जो रियलिस्टिक बात वो ये है कि इसी मुआशरे में जो जेन्युइन लोग होते हैं, और ये हर फील्ड के अंदर होता है, उनको कहीं ना कहीं सप्रेस किया जाता है, या कहीं ना कहीं वो माइक्रो मैनेजिंग का शिकार होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी क्रिएटिविटी को किल किया जाता है, कहीं ना कहीं वो ये समझते हैं कि दे आर नॉट बीइंग यूज्ड टू द फुल पोटेंशियल। They become docile with the passage of time. They compromise on certain things, and with the passage of years, they realize it's better to get yourself a good amount of money. That's it. वो पैशन। अच्छा, मास कम्युनिकेशन में एक चीज हम अक्सर पढ़ते हैं, विच इज दी एजेंडा सेटिंग थ्योरी। मैंने पहले थोड़ा बहुत मास कम्युनिकेशन पढ़ा है, तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ने का इत्तेफाक हुआ था। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो एजेंडा सेटिंग है ना, वो सिर्फ एक चीज के गिर्द घूमती है, विच इज करंट अफेयर। जबकि अगर आप दुनिया में देखें ना, यानी मैंने अभी रिसेंटली ही एक रिसर्च पढ़ी थी, तो मोर देन 75 to 80% इन द ऑफ द कंट्रीज आर बेसिकली ट्राइंग टू सेल एंटरटेनमेंट और इंफोटेनमेंट, आई वुड से। तो हमारे यहाँ हम क्यों सारी चीज करंट अफेयर्स के तहत के गिर्द घुमाते हैं? फिर बहाना अच्छा होता है मीडिया और इसके बाद के लोग देखना यही चाहते हैं, जब आप दिखाएंगे ये तो लोग देखेंगे भी, तो यही ना। अरे इसमें देखें, अब इसमें इसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं जब आपको देने में। हम जो पाकिस्तान है या हिंदुस्तान जो है, ये बेसिकली एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस एक पॉलिटिशियन को, या एक पब्लिक, एक रूलिंग एलीट के जितने भी डिफरेंट ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री के लोग हैं, जजेस हैं, उनकी न्यूज को ज्यादा दी जाएगी, बिकॉज दैट्स समथिंग व्हिच वी ऑल वांट टू बिकम, इन सेंस कि हमारे पास कोई पावर हो। दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग इनटू इट। तो ऑब्वियसली वो जो हम एक इल्यूजन में रहते हैं कि क्योंकि उनके पास पावर है, उनके पास इख्तियार है। पावर सिर्फ पैसों का नहीं होता, बहुत सारी चीजों का होता है। डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कि वो फंड्स को एलोकेट कर सकते हैं। तो वी आर लिविंग इन अ स्टेट ऑफ अ पॉवर्टी, और नॉट इन अ स्टेट ऑफ अ पॉवर्टी, वी आर अ डिप्राइव्ड नेशन, अपीलिंग इन आवर ओन आईज। और उसकी वजह से होता यह है कि जो मीडिया के मालिकान होते हैं, वो यही समझते हैं कि यार आवाम जो है ये सियासतदानों को ही ज्यादा देखना पसंद फरमाएगी, या ये पाकिस्तान के हवाले से नेशनहुड की खबरों को ज्यादा पसंद करेगी, क्योंकि हमारे पास एक मतलब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है भारत की तरफ से और दीगर मुल्कों की तरफ से। तो उस वजह से मीडिया समझते हैं कि वी हैव टू प्ले विद द इमोशंस। मगर साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान मीडिया पे करंट अफेयर्स छाया हुआ है। एंटरटेनमेंट को भी लोग बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं, खासतौर पे जो आपके जो डिफरेंट एंटरटेनमेंट के चैनल्स हैं, उनके जो ड्रामाज हैं, उन पर बाकायदा रिव्यूज लिखे जाते हैं। जैसे डॉन में एक इमेजेस के नाम से बाकायदा उसके अंदर एक आर्टिकल्स आते हैं, तो उसमें भी ऐसा नहीं है। मगर क्योंकि इस सिचुएशन को हमें ऐसे समझना है, जैसे आपने कोट किया, एंड मैं आपसे पूरी तरह अग्री करता हूँ कि 70% इंफोटेनमेंट की तरफ जा रहा है हमारा मुल्क भी। और मुल्क क्या, हमारा जो मीडिया है उसकी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डेटा बेस्ड जर्नलिज्म की तरफ जा रहे हैं, जो सोल्यूशन बेस्ड जर्नलिज्म की तरफ जा रहे हैं। जर्नलिज्म इज नॉट रेजिंग द प्रॉब्लम, journalism is raising the problem and getting the solution eventually. ये आपने जो ड्रामा की बात कही ना, सर, ऑल्दो वी हैड अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन विद वन ऑफ आवर मेनी वेरी वंडरफुल स्पीकर, हमने ड्रामा पर बात की थी स्टार्ट में, बट जस्ट मैं उसमें थोड़ा सा कंक्लूड इसी बात पे करूंगा ड्रामा को, देन आई विल आस्क यू अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर वी फाइनली एंड, क्योंकि हमारे पास वक्त बड़ा कम है और ये टॉपिक है कि इस पर आप जितनी गुफ्तगू करो उतना कम होता है। ड्रामा भी अनफॉर्चुनेटली जो आजकल दिखाया जाता है, जो पहले आज से 10 साल पहले का अगर आप ड्रामा देखेंगे, मुझे अभी तक याद है पाकिस्तान टेलीविजन पर धुआं और हवाएं आते थे तो दुनिया सिर्फ पीटीवी के सामने होती थी और वो ड्रामे देखा करती थी। अब अनफॉर्चुनेटली ड्रामे सिर्फ एक ही चीज पर होते हैं, वो क्या होती है? मोहब्बत में कुर्बानी और एंड में तलाक, या फिर एंड में हैप्पी एंडिंग।
यही आजकल के ड्रामे होते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी डेवेस्टेटिंग। इस पर इंशाल्लाह बाद में कभी डिटेल में बात करेंगे। बिफोर वी एंड तस्नीम, माई लास्ट क्वेश्चन टू यू, फिर उसके बाद मैं आपसे लोगों को कहूंगा भी कि क्या मैसेज दोगे। आजकल जो मीडिया हाउसेज है ना, उनका ये कहना है कि जब मैंने एक जैसे अलीमुद्दीन नवाजिश को मैंने एक मरतबा इन्वाइट किया था इस प्लेटफॉर्म पे, तो मैंने उनसे ये सवाल किया था कि भाई हमारे यहाँ एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम क्यों नहीं दिखाए जाते हैं। ही सेड कि बिकॉज रेटिंग नहीं मिलती, जिस जहां रेटिंग मिलती है आपका चैनल वहीं जाता है। तो डोंट यू थिंक के अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इस पर ध्यान दे तो हम एजुकेशन को भी अपने मीडिया पे दिखा सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक? गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं है एजुकेशन की तरफ। वो आपके सामने है कि जब कोविड की सिचुएशन थी तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल के अरसे तक आपके स्कूल्स बंद रहे, या वर्चुअली उनकी ऑपरेशन होता था, लेकिन उसमें कोई इफेक्टिव जो है वो कहीं से भी आपको नहीं लगता था कि। तो एजुकेशन तो यहाँ पे एक निगलेक्टेड सेक्टर है। लेकिन जो आपका सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया मालिकान की एक सेठिया सोच के तहत वो चलते हैं अनफॉर्चुनेटली, और वो ये होता है कि जो ड्राई सब्जेक्ट्स होते हैं वो उनको ज्यादा अपील नहीं करते। अच्छा, इसमें कसूर कुछ हमारे एजुकेशनिस्ट का भी है। वो मिसाल के तौर पे अगर उनको इनवाइट किया जाता है किसी भी हवाले से कि भाई आप एजुकेशन पे, HEC की पॉलिसीज पे, यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग्स पर बात करें, तो वो इतनी सकील गुफ्तगू करते हैं, इतनी मुश्किल करते हैं कि ऑब्वियसली फॉर अ लेम ऑडियंस इट्स नॉट अंडरस्टैंडेबल। So if we want these topics to prevail in the media, so in the media industry, we have to make it simple, but as attractive as it can be, as appealing as it can be. And for it, we need to educate that there is a optimized language that you have to use when you appear on the TV show. You can't use certain words, certain terminologies to impress the people. आपको सिर्फ बुनियादी बातें करनी है एजुकेशन के हवाले से कि तालीम, सबसे पहले सरकारी खत्मी मरतबत का फरमान कि तालीम जो है हर मर्द और औरत पे लाजिम है। अगर आप इस्लाम से भी आपका ताल्लुक नहीं होता, फिर भी एक जो दूसरी मज़ाहिब हैं उनके अंदर भी तालीम की बहुत अहमियत दी जाती है। फिर आपको सिंपल वे में, इतना कॉम्प्लिकेटेड डेटा है कि पाकिस्तान में कहीं पे भी एजुकेशन की कमी है, तो आपको उसको सिंप्लीफाई करके, क्योंकि देखें आप जिनसे मुखातिब है ना, उनकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम इससे ज्यादा है। उनके यहाँ गैस नहीं है, उनके यहाँ बिजली नहीं है, उनके यहाँ तनख्वाहें कम है। अभी एक रिपोर्ट आई है कि अराउंड 30% लोग जो हैं वो दो नौकरियों करने पे मतलब कर रहे हैं अपने अखराजात को पूरा करने के लिए। महंगाई है, इन्फ्लेशन है, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। जब वो इन चीजों से निकलेंगे तो फिर वो जो चीजें जो ह्यूमन इंडेक्स, जो ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स कंसिडर किए जाते हैं उस पर वो गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उस गुफ्तगू तक लाने का जो मरहला है उसमें जितने भी हमारे एजुकेशनिस्ट हैं या थिंक टैंकर्स हैं या सोशल साइंटिस्ट हैं या जो लिटरेरी लोग हैं, उनको सिंप्लीफाई करके आसान आसान फहम में गुफ्तगू को रखना होगा, उसको अपीलिंग बनाना होगा। और सबसे आखिरी बात इसमें मैं ये कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि एजुकेशन की तरफ आवाम को मुतासिर करें, तो आपको सबसे पहले उनको कंपैरिजन बिल्ड करना पड़ेगा अपने हरीफ मुल्क भारत के साथ। ये एक ऐसा टचिंग पॉइंट हो सकता है या एक कन्विंसिंग पॉइंट हो सकता है जो ड्राइव कर सकता है हमारे एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को बढ़ा के। वहां एजुकेशन की आप देखें क्या है, वहां लिटरेसी रेट का देखें क्या रेशो है, और पाकिस्तान में क्या है। वो ऐसा फैक्टर हो सकता है जो हमारा, उसके लिए एजेंडा सेटिंग करनी पड़ेगी, एडिटोरियल पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। उसके लिए ये तय करना पड़ेगा कि ठीक है हम एजुकेशन को वक्त देंगे 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन 10-15 मिनट में ऐसा वक्त देंगे कि वो सारी चीजों पर हावी होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसे आम फहम जुबान पर यूज किया जाए। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच तस्नीम फॉर योर टाइम। और एंड में एजुकेशन का सवाल करने का रीजन यही था कि जर्नलिज्म के अंदर अगर हम थोड़ी सी अपनी पॉलिसीज को बेहतर करते हुए थोड़ा सा मीडिया हाउसेस को समझा कर अगर हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीजें दिखाना शुरू कर दें हफ्तावार, डेली नहीं हफ्तावार ही, तो हमारी तालीम बहुत आगे जा सकती है। और यकीन करें वक्त इतना कम है तस्मीन कि आई वुड हैव लव टू कंटिन्यू दिस मच एज वी कुड, बट दैट से बात है, टाइम कहता है कि नहीं आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारी इस आमद का, और यू द वे यू हैव स्पोकन ओवर हियर, पीपल मस्ट हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस। और ये जनाब तज़मीन जावेद साहब हमारे साथ बात कर रहे थे जर्नलिज्म के हवाले से, इसके रोल पर। इस पर एक और बड़ी डिटेल डिस्कशन हम करेंगे एक और जबरदस्त से गेस्ट के साथ, लेकिन वो कौन होगा, डिस्कशन क्या होगी, क्यूरेटर्स ज़ाहिर हमेशा आपको थोड़ा क्यूरियोसिटी में रखता है, तो आपने इसके लिए क्यूरियस रहना है, लेकिन ये वीडियो लाजमी देखनी है। अब तो और अपने गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और तज़मीन को अपनी दुआओं का किसी कदर हिस्सा जरूर बनाइएगा। जिंदगी ने वफा की और साजगर रहे तो आपसे बहुत जल्द, बल्कि इन
बहुत अनकरीब आपसे एक और वीडियो में एक और जबरदस्त से गेस्ट के साथ बात होने वाली है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। और हमेशा जो हम बात कहते हैं वही कहूंगा लास्ट में कि स्टे क्यूरियस फॉर मच मच मोर।